Hello, friends. Now you know that very well. In this Corona vacation, we have started video lecturing process, and after completion of chapter two, now we are already, we can say that, at the midway stage of chapter three. Chapter three, very IMP, current electricity, and today we would like to discuss current electricity part 7a and 7b. Don't forget, I have observed one point, please, friends. Whatever the we can say the lecture divided into two parts, please think about the study of these both parts. Don't consider only one part and after 2 days we'll think about the second part. प्लीज़ दोनों पार्ट्स को एक साथ पढ़ोगे तो ज पता चलेगा, क्योंकि ये दोनों पार्ट इस तरह बनाए गए हैं ताकि सिंक्रोनाइज हो, तो ज दूसरे पार्ट्स में पहले पार्ट्स का रोल होता है। तो 7A और 7B दोनों एक साथ ही पढ़ना है। अपने जो टाइम शुरू होता है उससे के बाद, और अपन लोग ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट्स के बनाते हैं, तो उतने टाइम में आपको ये कवर करना है। प्लस आपने लास्ट लेक्चर देखा 6th नंबर मोस्ट टाइम भी, जिसमें हमने प्रैक्टिस सेशन शुरू की थी सीरीज और पैरेलल, और किस तरह जिसे कह सकते हैं कि कोई नेटवर्क में करंट फाइंड करने का पूछे, उसका हमने डिस्कशन किया था। तो एक क्वेश्चन हमने दिया था, दिस इज ऑलरेडी आस्क्ड इन IIT 1998। This is the question from IIT 1998. And what is the question? Current passing through this 4 ohm resistor. ऐसे टिपिकल क्वेश्चन, ऐसे तो सोल्व करने का मेथड अलग ही होता है, मगर ये टिपिकल है, उसका एक पर्टिकुलर पॉइंट इसके कारण हमने सिलेक्ट किया है। So just concentration required. First of all, we'll start the lecture with this question. Your target to find current passing through this 4 ohm resistor. So you know that current start is generally always from positive pole of the battery. So one point is clear. So current passing through this 3 ohm resistor, it is I, that means the total current of the circuit. So I would like to find first of all, what is the total current of circuit? It is I. So total current, that means total potential upon total, you know that very well, resistance. So what is the total potential? Total potential already with us 9 volt. So your next target to find total resistance. Just remember this type of network. If you have idea about series and parallel combination of कैपेसिटर and capacitance, इसीलिए मैंने बोला था कि कैपेसिटर का कुछ पोर्शन बहुत ही IMP है, जो चैप्टर 3 में धूम मचाने वाला ये टाइम आ गया है। तो मैंने आपको ऐसे नेटवर्क को क्रैक करने का मेथड दिया, इट इज कॉल्ड लेडर नेटवर्क। और लेडर नेटवर्क को सोल्व करने के लिए डेड एंड हमने इस्तेमाल किया था। ये अपना ओपन एंड है जहाँ पे बैटरी कनेक्ट की है। सो ऑलवेज यू हैव टू थिंक अबाउट डेड एंड, दिस इज द डेड एंड। सो स्टार्ट फ्रॉम डेड एंड। सो यू कैन सी हियर दिस 3 resistors are connected in which way? Obviously in series. So 2 plus 4 plus 2, it is already 8. तो इसका मैं डायग्राम साथ में ड्रॉ करता हूँ, जरा देखना। So this is your 3 ohm, there is again 8 ohm, and there is, you can see the 2, then there is 2 8 2, so 2 8 2 2 8 2. But what is the answer of this structure? It is already 8 ohm. You can see that means I represented we can say that red color. So now these 2 resistors are connected in which way? Obviously you can see in the form of parallel equal resistance and 2 resistors, so obviously half. तो इसका जो फाइनल आंसर बनेगा ऐसा होगा, बैटरी ऑफ 9 वोल्ट, then there is 3 ohm, then there is 8 ohm, this is 2 ohm, you can see, sorry 3, and what is the structure of these two? 8 8 already 4, so 8 8 4, you can see 8 8 4. So 2, what is the resistance of this one? 4. So 2 4 2, they all are in series. 2 4 2, it is again, you can see that 8. So now once again 8 8, so again it becomes 4. So final answer कुछ ऐसा बनेगा 3 here 4, because 8 8 parallel, so 4, so 3 4, you can see that 2. So now we can easily find this all are in series. So what is the net resistance of the circuit? It is 3 plus 4 plus 2, that means 9 volt. So sorry, 9 ohm, there is a mistake, 9 ohm. So now current, total potential upon total resistance, total potential 9. What is the total resistance of the entire network? It is 9. So obviously 1 ampere current
start its journey from positive pole of the battery. So I 1 एम्पियर, जब देखते जाना बराबर, अब ये 1 एम्पियर, तो ये 1 एम्पियर ये निकला देखो. So 1 ampere current is passing through 3 ohm. Now think about this point x. So x point के पास आके करंट रुक जाएगा. दो रास्ते पे आके, एक रास्ता इस साइड जाता है, एक रास्ता इस साइड. देखना बराबर. What is the resistance of this branch? 8. So what is the resistance of this entire portion? चेक करो. 8 के साथ देखो पूरा कितना है, पूरा पोर्शन का फाइनली कितना है 8. चेक करते हैं. 2 4 2 8 8 8 4 2 4 2 8. तो ये ब्रांच का रेजिस्टेंस है 8, यानी पूरा सिंप्लीफाई करो. इफ यू थिंक अबाउट सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस एंटायर रीजन, यू कैन सी देन व्हाट इज द रेजिस्टेंस 8 ओम. यानी नेटवर्क कुछ ऐसा दिखेगा. देखो ये 3 ओम, यहाँ से करंट 1 एम्पियर. if this is your x point, this is your x point, what is the, we can say there are two branches, एक और दो. what is the resistance of this lower branch? it is 8, and resistance of the other branch it is also 8. तो x point के पास करंट रुक जाएगा क्योंकि दो रास्ते पे आके, मगर दोनों रास्ते पे रेजिस्टेंस कितना है? ये रास्ते का रेजिस्टेंस 8 ओम, ये रास्ते का भी रेजिस्टेंस 8 ओम. अगर रेजिस्टेंस सेम तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम, यानी ये 1 एम्पियर करंट 0.5 और 0.5 ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. तो देखो यहाँ से 0.5 और ये ब्रांच में 0.5 यू कैन सी. अब इधर आता है करंट y पॉइंट के पास. तो y पॉइंट के पास करंट आया तो भी अपन लोग जानते हैं. देखो ये इधर मैं समझा रहा था तो ये x था और अभी y, तो इधर देखते y. सो y पॉइंट के पास करंट 0.5 आया. वापस y पॉइंट के पास दो रास्ते पे आके, एक रास्ता इस साइड जा रहा है, एक रास्ता इस साइड जा रहा है. इस ब्रांच का रेजिस्टेंस है 8 ओम, जबकि इस ब्रांच का रेजिस्टेंस भी कितना है 8 ओम. वापस करंट के दो पार्ट्स होंगे 0.25. सो ये ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा है 0.25. सो व्हाट इज द रेजिस्टेंस और व्हाट इज द करंट पासिंग थ्रू दिस 2 ओम, 4 ओम and 2 ohm? Obviously they all are connected in series, then current remains same. That means 0.25 ampere current will pass through this 4 ampere resistor, and that's your answer. You can see most IMP. ये अच्छा क्वेश्चन है. इसमें ज्यादातर जिसे कह सकते हैं दूसरा कुछ नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क. अगेन 2 4 2 8 8 प्लस 8 16 मत करना, ये सीरीज नहीं है, ये पैरेलल है, वो भी रेजिस्टर. तो दो रेजिस्टर्स पैरेलल में हो, दोनों का रेजिस्टेंस सेम हो, बिंदास एक ज काम करना है, आप जानते हो, हाफ. सो ऑब्वियसली ये 2 4 2 8 8 8 4, then 2 4 2 8 8 8 4, so 3 4 2 9. so ये पूरी सीरीज देखो 9 इधर. सो रेजिस्टेंस 991. तो यहाँ से 1 एम्पियर करंट निकला, इधर रुक जाएगा क्योंकि इस ब्रांच का रेजिस्टेंस 8 ओम, इस ब्रांच का भी 8 ओम. तो करंट का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा. 1 एम्पियर में से 0.5 ये 0.5 इधर आया, तो वापस दो रास्ते पे आके इसका इसका 8 ओम, इसका भी 8 ओम. सो पॉइंट y के पास करंट 0.5 एम्पियर है, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा 0.25. इन शॉर्ट 4 ओम रेजिस्टर में से 0.25 एम्पियर करंट पास होगा. ये दूसरी मेथड से भी हो सकता है, मगर वो किरचॉफ्स लॉ अपन लोग उसका स्पेशल लेक्चर जो नेक्स्ट लेक्चर वही है तब देखेंगे. मगर ये मोस्ट टाइम जस्ट एनालाइज. ओके फ्रेंड्स, सो नाउ यू थिंक अबाउट द वन मोर. दूसरा क्वेश्चन में जो देने जा रहा हूँ, मैंने दिया था वो होमवर्क में 2 दिए थे, मगर वो दूसरा क्वेश्चन है वो अपन लोग जिसे कह सकते हैं कि आपके ही छोड़ रहे, क्योंकि मैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन में जाना चाहता हूँ. क्यों वो बेहतरीन है वो भी पता चलेगा. तो थोड़ी प्रैक्टिस के बाद अपन लोग कॉम्बिनेशन ऑफ जो सेल्स जो आज का मोस्ट टाइम पे पार्ट है वो शुरू करने वाले हैं. तो जस्ट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड. नाउ दिस इज योर क्वेश्चन. there is 1 ohm resistor, 1 ohm resistor, then 2 ohm resistor, 1 1 2, and there is, you can see, 8 ohm resistor, and there is a battery of simply 1 volt. So what is your target? Your target to find current passing through
1 ओम रजिस्टर स्टार्ट। सो ये अपना टारगेट है 1 ओम रजिस्टर का। ओके, सो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना वाकई इजी है और ऐसा हमने डिस्कशन किया हुआ है। चैप्टर नंबर 2 का कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस को याद करो तो देखो ये रहा एक का एक ब्रांच, फिर ये ब्रांच, इसको मैं कह देता हूँ ए, इस पॉइंट को कह देता हूँ बी। यानी अपने को ए बी ब्रांच के ऊपर फोकस करना है। इस ए बी ब्रांच को मैं इधर ड्रॉ करूँ, ये रहा ए। दिस टू रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन विच वे? दिस टू रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सो इसका 1 और 1 है तो हाफ हो जाएगा। सो यू कैन सी 0.5 एंड देयर इज वन मोर रजिस्टर बट इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। दिस इज योर पॉइंट बी। तो बोले ये ब्रांच के ऊपर, क्योंकि अपना टारगेट इस ब्रांच में, इसलिए हमने ये ब्रांच को ले लिया। अब देखो 8 ओम वाली ब्रांच और अपर ब्रांच, दिस टू ब्रांचेस आर कनेक्टेड इन विच वे? दे बोथ आर इन पैरेलल। सो फॉर पैरेलल combination whatever the PD across this 8 ohm, the same PD across AB, because they all are connected in parallel. So what is the potential difference across these 2 points AB? It is 1 volt। तो चलो AB के across 1 volt है, देखो ये है सीधा, यानी ये 8 ohm है ही नहीं ऐसा समझो तो भी चले, सीधा ये, डोंट वरी। अब अपना टारगेट है 0.5 एम्पियर जो 1 ओम रजिस्टर इसमें पड़ा है। तो सबसे पहले अपने को, जिसे कह सकते हैं इस ब्रांच को कितना करंट फ्लो हो रहा है वो फाइंड करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस है देखो 1 वोल्ट। अब इस ब्रांच का रेजिस्टेंस भी मिल गया, दे बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। सो व्हाट इज द रेजिस्टेंस? 2.5 ओम। थीम समझो, अपने को इस ब्रांच का करंट फाइंड करना है। कोई बोले इस ब्रांच का नहीं सर 1 ओम का ही फाइंड करना है, डोंट वरी, इस ब्रांच का करंट फाइंड कर लो, फिर डिस्ट्रीब्यूशन तो अपन लोग आराम से कर लेंगे। तो इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है फाइंड करना हो तो करंट का सिंपल फॉर्मूला अपन लोग जानते हैं, पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल अपने पास है देखो 1 वोल्ट। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस ब्रांच? इट इज 2.5। सो व्हाट इज द करंट पासिंग थ्रू AB ब्रांच? व्हाट इज द करंट पासिंग थ्रू दिस ओनली AB ब्रांच? It is the potential difference across AB upon the resistance across AB. What is the potential difference across AB? It is 1 volt. And what is the resistance across AB? It is 2.5. 2.5 को मैं लिख सकता हूँ 5/2, यानी कि 2/5 एम्पियर। आप इस तरह देखो 2/5 एम्पियर। तो इसको टोटल 2/5 एम्पियर करंट मिल रहा है। अब अपन लोग जिसे कह सकते हैं कि अपना टारगेट है वहां जाए, तो मैं इतने पोर्शन को वापस इधर जूम करके रिप्रेजेंट कर रहा हूं। देखो दिस इज योर 1 ओम एंड व्हाट इज द टोटल करंट अवेलेबल? इट इज 2/5। याद करो कल का लेक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट फॉर टू पैरेलल रेजिस्टर्स। दिस इज योर R1 R2, लेट द करंट पासिंग थ्रू योर I1 I2। सो I1 फाइंड करने का शॉर्टकट मैंने दिया था IR2 अपॉन R1 प्लस R2, ये दो रजिस्टर्स के लिए। 3 रजिस्टर का भी शॉर्टकट है, डोंट वरी, मगर वो अपन लोग JEE नीट्स सेशन जो शुरू करेंगे स्पेशल, हर एक का एक टॉपिक वाइज कर रहे हैं, मगर लास्ट में पूरे चैप्टर का देखेंगे टिपिकल। सो I2/5 R21 R1 प्लस R2 यानी 1/1 यानी 2/5 डिवाइड बाई 2 यानी 2/10। सो व्हाट इज योर I1? इट इज 2/10 यानी 0.2 एम्पियर। और जाहिर सी बात है 2/5 का मतलब क्या होगा? 0.4। तो ये जो करंट 0.4 है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, क्योंकि इधर भी 1 ओम इधर भी 1 ओम। सो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो मतलब 0.4 के इक्वल पार्ट्स होंगे 0.2 एम्पियर 0.2। सो व्हाट इज द करंट पासिंग थ्रू दिस 1 ओम रेजिस्टर? इट इज 0.2 एम्पियर। इसमें से भी 0.2 एम्पियर। अगर यही क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द करंट पासिंग थ्रू दिस 2 ओम रेजिस्टर, तो टोटल करंट ही होगा, वो कितना होगा? 0.4 एम्पियर। तो फ्रेंड्स दिस इज द मोस्ट टाइम क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस देखो बहुत ही अच्छी तरह देखा जाए तो ये क्वेश्चन ना तो बहुत ही डेंजर है और ना तो बहुत ही इजी, आइडियल क्वेश्चन है। और मैंने बोला था मोस्ट टाइम पे है, इसलिए मोस्ट टाइम पे है क्योंकि ये रिसेंटली JEE 2020 जनवरी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यू कैन सी JEE 2020 का एक क्वेश्चन। सो इसके ऊपर से आपको पता चला कि बहुत ही हाई फाई क्वेश्चंस का लेवल नहीं देखना है, डोंट वरी। आइडियल क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर, वी कैन से दैट आइडियल क्वेश्चन पेपर। तो ब्रांच टू ब्रांच जाना, अगर 8 ओम का पूछते तो बहुत इजी। 8 ओम का पूछते तो 8 ओम का करंट फाइंड करना बहुत इजी। इट इज V/R। V कितना है? इसके अक्रॉस तो 1 वोल्ट और करंट और रेजिस्टेंस था 1/8 एम्पियर। सो
जिस तरह कैपेसिटर्स के फंडे इसी तरह जाना है, वहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। वहां पे अपन लोग कैपेसिटेंस के साथ खेलते थे, यहाँ पे रेजिस्टेंस के साथ खेलना है, कोई फर्क नहीं, सब कुछ सेम है। मगर जब नेट कैपेसिटेंस और नेट रेजिस्टेंस फाइंड करने की बात आए तब आपको चौकन्ना रहना है, क्योंकि नेट रेजिस्टेंस और नेट कैपेसिटेंस आप जानते हो फॉर्मूले जरा जिसे कह सकते हैं कि उल्टे पुल्टे हो जाते हैं। सो मोस्ट टाइम क्वेश्चन वी डिस्कस JEE 2020। अब फ्रेंड्स अपन लोग शुरू करने जा रहे हैं एक और क्वेश्चन जो जिसे कह सकते हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। वो भी देखो, मैंने आपको इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी का EMF, टर्मिनल वोल्टेज, ऐसे सब क्वेश्चंस लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किए थे। अभी भी उसका जिसे कह सकते हैं कि कनेक्शन वाला एक क्वेश्चन में कनेक्ट यानी कि रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। देखो, मोस्ट टाइम पे इसलिए है बिकॉज दिस टाइप ऑफ टू बैटरी, सपोज देयर इज अ बैटरी ऑफ 8 वोल्ट and its internal resistance is 0.5 ohm। ऐसी कोई 8 वोल्ट की बैटरी जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ohm and we would like to charge this battery, and you know that very well, to charge the battery we have to satisfy two conditions. Number one, it should be connected with, we can say that, source having high voltage। तो इस बैटरी को दूसरी एक 120 वोल्ट पोटेंशियल वाली बैटरी या सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब 120 वोल्ट के साथ कनेक्ट करो तो जूम से करंट निकलेगा। और देखो कनेक्शन पॉइंट, चार्जिंग के लिए मैं 2 पॉइंट्स दे रहा हूँ। एनी टाइम whenever any battery is being charged or in charging condition, then you have to think about 2 points. Number one, the charging battery always connected with source। देखो 8 वोल्ट बैटरी अपनी चार्जिंग बैटरी है, वो 120 वोल्ट जो बैटरी वो उसको कहते हैं सोर्स। सोर्स का वोल्टेज ऑलवेज चार्जिंग बैटरी से ज्यादा होना चाहिए, जाहिर सी बात है। दूसरा पॉइंट, कनेक्शन कोड, जो बैटरी चार्ज हो रही हो उसका पॉजिटिव पोल सोर्स के पॉजिटिव पोल के साथ, और जो बैटरी चार्ज हो रही है उसका नेगेटिव पोल सोर्स के नेगेटिव पोल के साथ कनेक्ट होना चाहिए, जैसे इधर हमने कर दिया। मगर वापस पॉजिटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव, इस तरह का कनेक्शन होना चाहिए। तभी क्या होगा, ये 120 वोल्ट में से करंट है वो एंट्री लेगा। ऐसे याद करो, मैंने चार्जिंग डिस्चार्जिंग के फंडे दिए थे। कोई भी बैटरी चार्ज होती हो तब उसका पॉजिटिव पोल चेक करने का, अगर करंट पॉजिटिव पोल थ्रू एंट्री ले तो बैटरी चार्ज हो रही है, और अगर बैटरी में से करंट पॉजिटिव पोल थ्रू बाहर आता हो तो बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। इधर बैटरी चार्ज हो रही है, देखो तो ये करंट गया चार्ज, इसको चार्जिंग करंट कहते हैं। ये चार्जिंग करंट का फॉर्मूला JEE नीट सेक्शन में अभी मैं बताने वाला हूँ। मगर अब इस सिचुएशन में थोड़े लोचे हो जाएंगे। क्यों लोचे हो जाएंगे? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा वोल्टेज है। अब ज्यादा वोल्टेज के कारण करंट भी जोरदार होगा, जबरदस्त करंट जाएगा तो ये बैटरी के लिए डेंजर हो सकता है। इसलिए इस करंट को थोड़ा लिमिट करना पड़े। इसलिए इसको लिमिट करने के लिए हमने इधर एक सीरीज रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया। वो इधर भी अपन लोग कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ जरूर नहीं। इधर जो 15.5 ओम का है, 15.5 ओम का सीरीज रेजिस्टर मैंने कनेक्ट कर दिया है। इससे करंट थोड़ा लिमिट हो जाएगा, और लिमिटेड एडिशन के कारण 8 वोल्ट की बैटरी को इतना डेंजर करंट मिलेगा नहीं। अब ये स्ट्रक्चर है, आपका टारगेट क्या है? योर टारगेट टू फाइंड टर्मिनल वोल्टेज ऑफ 8 volt battery. This is your target. No problem. We have idea about the formula of terminal voltage. Terminal voltage V is equal to epsilon minus IR। याद करो। मगर मैंने बोला था ये चिकना केस, अगर बैटरी डिस्चार्ज हो तो ये फॉर्मूला, if any battery is being charged then what's the formula? It is epsilon plus IR। तो ये आपका टर्मिनल वोल्टेज हुआ। Here 8 volt battery is charged, that's why its terminal voltage epsilon plus IR। So epsilon, it is already with us 8 volt, small r internal resistance it is 0.5 ohm। So what's the next point? Current। So now here current of system। So current का मतलब है, you know that very well, total EMF upon total रेजिस्टेंस। ये मैंने रामबाण यानी बहुत ही आईएमपी फॉर्मूला दिया है। व्हाट इज द टोटल ईएमएफ? तो चेक दिस बैटरी 8 वोल्ट एंड चेक दिस बैटरी 12 वोल्ट, सॉरी 120 वोल्ट। इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव नेगेटिव के साथ हो तो ऐसी सिचुएशन को ऑपोजिट कंडीशन कहते हैं। मैंने आपको सिखाया हुआ है, चेक करो।
अगर ये कंडीशन, इसको हेल्पिंग कहते हैं, एक बैटरी का नेगेटिव दूसरी बैटरी के पॉजिटिव के साथ, तो हेल्पिंग में एडिशन होता है पोटेंशियल का। मगर एक बैटरी का नेगेटिव दूसरी बैटरी के नेगेटिव के साथ, या एक बैटरी का पॉजिटिव दूसरी बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो, मतलब ये है ओपोजिट कंडीशन या ओपोजिट कनेक्शन। इन ओपोजिट कंडीशन वोल्टेज और पोटेंशियल गेट सब्ट्रैक्टेड, तो इधर टोटल ईएमएफ होगा 120 minus 8. Why this minus sign? Now you understand, because they both are in opposite condition. ये खास सीखने का है। अपॉन टोटल रेजिस्टेंस है 15.5 प्लस 0.5, ये है आपका कैपिटल आर और ये आपका स्मॉल आर। तो अपन लोग इसमें वैल्यूज रखे अब। सो अब इसका सिंप्लीफिकेशन इफ यू फाइंड, देन 120 minus 8 यानी 112, 15.5 that means 16 7 जा 112, so 7 ampere current. So terminal voltage of 8 volt battery, it is V is equal to epsilon plus IR, epsilon 8, I already we have found 7, 0.5, 8, 7 into 0.5 that means 3.5, so 11.5, this is the terminal voltage of this 8 volt battery. चलो लगे हाथ 120 वोल्ट बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज पूछे तो, सो 120 वोल्ट का पूछे तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया है, मगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दे तो फॉर्मूला क्या होगा, ऑब्वियसली एप्सिलॉन माइनस आईआर, बिकॉज दिस 120 वोल्ट बैटरी इज डिस्चार्जिंग, उसमें से करंट बाहर आ रहा है, तो वो बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, ये बैटरी चार्ज हो रही है। चार्जिंग हो तब ये ध्यान रखना बहुत ही चिकना कैसे है, इसलिए क्वेश्चन मोस्ट टाइम भी इसको पूछ सकते हैं। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ दिस सीरीज रेजिस्टर? सीरीज रेजिस्टर इज वेरी यूजफुल to limit the current, otherwise current becomes danger for given battery. So this is the most important question, और इसको कवर करने का रीजन ये आपका टेक्स्ट बुक का 11 नंबर का अनसोल्ड है, NCERT नंबर 11, वेरी वेरी IMP, जस्ट एनालाइज। तो मस्त क्वेश्चन हमने सोल्व किया। अब अपन लोग नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, ये बैटरी सब डिस्कशन किया। आज अपने को बैटरी यानी सेल, केमिकल सेल, CELL सेल, उस पे डिस्कशन करना है। अब मैं ये करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 7A को हटा देता हूँ, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमें वही पार्ट में काम करने का है। सो फ्रेंड्स, नाउ बी रेडी फॉर इट। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स है वो डे टू डे वर्क करते होंगे, और 12th स्टैंडर्ड है, मैंने बोला आपके पास जिसे कह सकते हैं कि लास्ट 1 चांस, उसके बाद चांसेस मिलते हैं, ऐसा नहीं फेल होने के बाद वापस भी एग्जाम देने देते हैं, मगर वो बात अलग है। और मैंने आपको एक स्लोगन दिया है, याद करो, 5, 10, 15, 5, 10, 15, 20, 25, 30। ये क्या है, 5 तारीख से 10 तारीख, 10 तारीख से 15, बहुत फास्ट है कि देखना, और 15 से 20 से 25, 30, बहुत ही फास्ट मंथ जाते हैं। आप देखो अभी हम लोग मार्च में ऐसा डिस्कस कर रहे थे लॉकडाउन एंड वन, अपन लोग मिड वे मई तक आ गए, ओके। और जून जुलाई अगस्त अक्टूबर से जिसे कह सकते हैं कि बोर्ड के आवाज़ जिसे कह सकते हैं आने लगते हैं, और बोर्ड नज़दीक आ गए ऐसा एहसास होने लगता है। सो फ्रेंड्स, दिस इज वी कैन से दैट द बेस्ट अपॉर्चुनिटी विथ यू, बिकॉज यू नो दैट वेरी वेल दिस इज द कैरियर मेकिंग ईयर, and whatever with you we can say they give your 100% or more than 100%, जो पावर झोंकना है जोर दो, क्योंकि ये आपको प्रूव करने के लिए लास्ट चांस दिया जा रहा है। सो मैं तो वापस कह रहा हूँ कि सभी लेक्चर्स को रिवाइज करो, और इतने लेक्चर्स कर दो मतलब आपका A to Z हो गया, नीट JEE A to Z, ये ही सभी क्वेश्चंस के कंसेप्चुअल स्टडी करना है। और ये देखो, ये सभी लेक्चर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको कितनी बार बताया, बाकी सब लेक्चर्स की कंपैरिजन में इसमें एक और पॉइंट अलग है, मोस्ट प्रोबेबली बाकी सब थ्योरेटिकली कम, जिसे कह सकते हैं लॉजिकली, यानी कि थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन कम होता है, सीधे फॉर्मूले और क्वेश्चन, ये आपका बेस भी बनाएगा, और साथ में JEE नीट कंसेप्चुअल पॉइंट। तो अब जो टॉपिक है वो ऐसा ही टॉपिक है जोरदार। सो वी स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, मोस्ट IMP यानी बैटरीज, मोस्ट IMP। अभी हमने रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट किया, हमने कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट किया, फ्यूचर में इंडक्टर को करेंगे।
अब बैटरी को करने जा रहे हैं। इफ टू बैटरीज आर कनेक्टेड इन सीरीज, स्टार्ट विथ सीरीज कॉम्बिनेशन, रेडी। सो यू कैन सी these are the two batteries or two cells. Let the EMF of the first battery is epsilon 1, EMF of the second battery is epsilon 2, internal resistance R1, here internal resistance R2. Okay, इसमें से करंट और इसमें से करंट, you can see here current I and I, because of series current remain same, or you can see there is external resistor is connected. अब एक्सटर्नल रजिस्टर अभी मैं जिसे कह सकते हैं कि हटा देता हूँ, बाद में कनेक्ट करते हैं। तो अपना जिसे कह सकते हैं ये कॉम्बिनेशन है। यू कैन सी हियर दिस टू पॉइंट्स आर ए बी, या इसको कह देते हैं ए सी, और दिस इज योर वी कैन से पॉइंट बी। सो व्हाट्स योर टारगेट? आई वुड लाइक टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कॉम्बिनेशन। पूरा जो कॉम्बिनेशन है उसके अक्रॉस पीडी, यानी ए और ये सी पॉइंट्स के बीच का पीडी फाइंड करना है। इसको कहेंगे पूरे कॉम्बिनेशन का टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज आप भली भांति जानते हो। ये देखो ये बैटरी, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये ईएमएफ, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, ये दोनों पॉइंट्स के बीच का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है उसको अपन लोग कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज। अगर इसमें से करंट बाहर आता होगा तो टर्मिनल वोल्टेज होगा एप्सिलॉन माइनस आई आर। अगर करंट घुस रहा होगा तो एप्सिलॉन प्लस आई आर। बाहर आ रहा है मतलब डिस्चार्ज, जा रहा है मतलब चार्जिंग। तो अपन लोग ये कॉम्बिनेशन में देखना चाहते हैं। सो जस्ट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड, बहुत इजी। मैं टेक्स्ट बुक के मुताबिक डिक्टो जाऊंगा, बाद में JEE नीट, ताकि आपका सब कुछ बने। टेक्स्ट बुक किस तरह जा रही देखो। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी। चलो ये दोनों पॉइंट्स के बीच का पीडी, सो इस दोनों पॉइंट्स का पीडी है वो मैं फाइंड करना हो तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी, इट इज वी ए बी। रेडी? तो फॉर्मूला क्या होगा इसका? ईएमएफ देखो एप्सिलॉन 1, तो अपन लोग लिखे एप्सिलॉन 1, इसमें से करंट बाहर आ रहा है मतलब ये डिस्चार्ज हो रहा है, सो माइनस आई आर 1, क्योंकि करंट तो सेम ही है। इसी वी ए बी का मतलब होगा वी ए माइनस वी बी, so epsilon minus IR1. Now potential difference between B and C, you can see ये दोनों पॉइंट्स के बीच का, यानी सेकंड बैटरी, ये फर्स्ट हो गया सेकंड, सो इट इज VBC, यानी कि VB minus VC. So what is the potential difference across these two points? यानी टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेकंड बैटरी। सो टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला जानते हैं, EMF माइनस करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। तो ये बन गया आपका VB minus VC, यानी potential difference between B and C. So I would like to find VA minus VC. So by taking summation of these two equations, so equation number 1 plus equation number 2, ये दोनों का सम करो तो कैंसिल। So VA minus VC is equal to epsilon minus IR1 plus इसको ऐड करें epsilon 2 minus IR2. So VA minus VC, here epsilon 1 plus epsilon 2, और ये I वाले में से minus I common, these two terms you can see. So R1 plus R2, because minus common, so minus become plus. So VA minus VC का मतलब क्या होगा अभी बताएं। VA minus VC, that means potential difference between 2 points A and C, it is V. So VA minus VC, that means potential difference across this entire combination. इस V को कहा जाएगा, ये दोनों बैटरीज को अगर सीरीज में कनेक्ट किया हो तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए टर्मिनल वोल्टेज। सो V इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 माइनस R1 प्लस R2, द मोस्ट IMP इक्वेशन वी हैव डिराइव्ड। इस टर्मिनल वोल्टेज को अपन लोग थोड़ा डिटेल स्टडी करें तो टर्मिनल वोल्टेज का जनरल फॉर्मूला क्या था चेक करो, ऐसा है। So this is your terminal voltage V, this is your epsilon, तो नेट और इक्विवेलेंट जो EMF होगा ऐसा। अगर ये दोनों बैटरीज को सीरीज में कनेक्ट करो, so what is the equivalent और नेट EMF? नेट EMF होगा दोनों बैटरीज का EMF का समेशन। और ये अभी हमने देखा, चेक करो, एक बैटरी का नेगेटिव दूसरी बैटरी के पॉजिटिव के साथ कांटेक्ट में हो
तो ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है, अपन लोग जानते हैं इसको हेल्पिंग कंडीशन कहते हैं। और हेल्पिंग कंडीशन में दोनों बैटरीज का ईएमएफ ऐड होता है। ये देखो डायरेक्ट इधर भी आ गया। सो ये इक्विवेलेंट ईएमएफ है, दिस इज योर इक्विवेलेंट ईएमएफ। अगर इस दोनों बैटरीज को इस तरह सीरीज में कनेक्ट किया जाए तो इसका नेट ईएमएफ फाइंड करने का ये फॉर्मूला। तो इसका नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, ऑब्वियसली सीरीज में ये रहा नेट रेजिस्टेंस, देखो आर। सो नेट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा R1 प्लस R2। तो ये अपन लोगों ने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया। इसको पूछने के चांसेस है नहीं, मगर थ्योरेटिकली मैंने फिर भी एक्सप्लेन किया क्योंकि टेक्स्ट बुक के मुताबिक। बाकी बहुत ही जाहिर सी बात है, दो बैटरीज को सीरीज में कनेक्ट करो तो उसका ईएमएफ डायरेक्टेड होगा। रेजिस्टेंस तो अपन लोग जानते हैं सीरीज के लिए डायरेक्ट, तो ये मोस्ट टाइम भी। तो ये फॉर्मूला टर्मिनल वोल्टेज के लिए भी काम में आएगा, मगर इन विच circumstances whenever two batteries are connected in series. So if you write this equation for n number of batteries, then what happen? Suppose there are n number of batteries. So for n number of batteries, terminal voltage can be written like epsilon 1 plus epsilon 2 dash 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 epsilon n minus I, और रेजिस्टेंस की जगह क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस डैश 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 RN। तो ये सब हो जाएगा। ये बनेगा आपका इक्विवेलेंट और नेट ईएमएफ, और ये बनेगा नेट रेजिस्टेंस। तो मोस्ट टाइम भी, और मोस्ट टाइम भी मतलब फॉर्मूले वाइज, बाकी कुछ ऐसा है नहीं। मगर अब इसका जेडब्ल्यू नीट डिस्कस करते हैं। नाउ सपोज ये जो मैं केस देने जा रहा हूँ वो बहुत एमपी है, सो बी अलर्ट। सो विल राइट हियर A to Z, where JEE NEAT concept for series combination. So when n number of batteries, you can also write cells, don't worry, n number of batteries having same EMF epsilon and same internal resistance R are connected in series, most time p n number of batteries are connected in series। देखो डायग्राम देखना, 1 2 डैश डैश डैश, this type of 1 2 n number of batteries। What is the EMF of each and every battery? Same. What is the internal resistance? Same. Then if this type of combination is connected with any external resistance R, then what is the current passing through this resistor? चलो इसका इक्वेशन में डिराइव करना सिखाता हूँ, देखो जरा। सो करंट एकदम पप्पू टाइप, डोंट वरी। I का मतलब है करंट, टोटल करंट मतलब टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। आप जानते हो व्हाट इज द टोटल EMF। ये सभी का हेल्पिंग कंडीशन देखो, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। सो EMF एप्सिलॉन एप्सिलॉन एप्सिलॉन, सो टोटल EMF होगा एप्सिलॉन एप्सिलॉन हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, सो n एप्सिलॉन। टोटल रेजिस्टेंस देखो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो है ही R, प्लस इसका रेजिस्टेंस इंटरनल स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल r, हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स। सो सीरीज में तो क्या हो जाता है NR। सो आज से बस मुझे ये फॉर्मूला दिमाग में चाहिए, ये धूम मचाएगा कब, when n number of batteries are connected in series but having same EMF and same internal resistance, then how can you find current passing through external resistor? It is n epsilon upon R plus NR, very 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 IMP formula, analyze। ओके अब देखो इसका मैं एप्लीकेशन बताता हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट। पता चला ये फॉर्मूला इजी, बट नाउ वी वुड लाइक टू अप्लाई दिस कंसेप्ट इन वन, वी कैन से द क्वेश्चन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, बोर्ड में इसको थ्योरेटिकली पूछने के चांसेस जीरो, डोंट वरी। और पूछे तो मजा आ जाए, बहुत इजी। अब जरा देखो, नाउ वी थिंक अबाउट वन क्वेश्चन। सपोज दिस टाइप ऑफ 6 batteries are connected in series. How many 6 batteries? You can see 6 batteries having EMF of 2 volt. सबका EMF है 2 volt, don't worry.
एंड इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है 0.015 ओम, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है. So 6 batteries having same EMF 2 volt, same internal resistance 0.015 ohm. This type of 6 batteries are connected with external resistance of 8.5 ohm. चलो ऐसा combination दिया है. So what is the current is drawn by this, or current passing through this resistor 8.5. So we have idea about shortcut, you know that. So here we will write in very good language, for n number of cells having same EMF and internal resistance. What is the formula for current? Current I is equal to n epsilon upon R plus NR. अभी डिराइव किया, डिराइव करो आराम से पता चल जाए, ऐसा रट्टे मारने की जरूरत नहीं है. So here n representing number of cells, epsilon is the EMF, R is the external distance, number of cells and internal distance. तो अपन लोग डायरेक्टली करंट फाइंड कर सकते हैं. So I here number of cells already 6, you can see 6. What is the EMF? EMF 2, R है 8.5 plus number of cells 6 multiply by 0.015. So if you simplify, then what's the answer? 6 to 12, and here 8.5 plus 15, 6 90. You know that 90 divided by 1000, that means obviously 0.9 something. So we can see here. Okay, so 15, 6 90. 90 divided by 1, 2, 3, and 1000. You can see, ready. Or you cancel, so 0.09. So 12 upon 8.5 plus 0.09. Now whatever the answer, this is your, we can say that answer in ampere. तो इतना करंट आएगा. ओके, यू कैन सी दिस इज योर करंट आई. अब इसका टर्मिनल वोल्टेज पूछा है, तो ये टर्मिनल वोल्टेज देखो, ये टर्मिनल वोल्टेज, तो अभी मैंने इसका टर्मिनल वोल्टेज आपको सिखाया, ये आप शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो. V इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस आई आर. एप्सिलॉन होगा 6 to 12, R होगा 6 into 0.05. अगर ऐसा शॉर्टकट अप्लाई ना करना हो तो ये भी अप्लाई कर सकते हो. V इज इक्वल टू आई आर, इसका पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस. तो करंट यहाँ से होगा, रेजिस्टेंस आप जानते हो 8.5. आंसर यू कैन सी, मोस्ट इम्पोर्टेंट. तो ये जिसे कह सकते हैं कि क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, मगर ये n नंबर ऑफ सेल्स के कारण हमने अप्लाई किया इधर. दिस इज द वेरी IMP. दिस क्वेश्चन इज यूज्ड, you can see that particularly, sorry, this question is already available in your textbook, and this is your 3.15 unsolved number 3.15, very IMP. I think इसमें एक और क्वेश्चन पूछा है, what is the maximum current is drawn after very long time. So max current, ये तो अपन लोग चैंपियन इसमें, तो max current में, तो max current that means EMF upon resistance. So EMF अपन लोग जानते हैं 6 to 12, और रेजिस्टेंस भी इतना डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं अपन लोग 2 by 0.015. इसका आंसर अब देखो बहुत ही कम आएगा, तो ये मिली एम्पियर में आने वाला है, डोंट फॉरगेट. तो मैक्सिमम करंट आफ्टर वेरी लॉन्ग यूज जिसे कह सकते हैं कि मिलेगा 25 मिली एम्पियर, जितना आंसर आता है इसका. मतलब आपको ऐसी 6 बैटरीज का कॉम्बिनेशन किया जाए, और बहुत दिनों के बाद अगर ऐसी 6 बैटरीज का यूज करके अपन लोग कार का स्टार्टर थ्रू कार स्टार्ट करने की कोशिश करें, तो कार स्टार्ट होगी नहीं. क्योंकि अपन लोग जानते हैं, कल लास्ट लेक्चर देखो पार्ट 6A6B, कार का जो स्टार्टर है उसको बहुत ही ज़्यादा करंट चाहिए, भले फ्यू सेकंड्स के लिए, मगर वो करीबन 90 to 100 एम्पियर होता है, जबकि ये तो मिली एम्पियर में है. मतलब ये 6 बैटरीज का कॉम्बिनेशन कार का जो स्टार्टर है उसको इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि जो इनफ करंट है वो नहीं दे पाएगा, मतलब कार स्टार्ट होने के चांसेस बहुत कम. तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन. दिस इज योर अनसोल्व्ड नंबर 3.15 बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स बट सीरीज. अब अपन लोग देखने वाले नेक्स्ट पॉइंट, पैरेलल कॉम्बिनेशन. पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही IMP है, अगर एक बार ये देख लो अच्छी तरह.
ओके, तो ये हमने पार्ट 7 देखा जिसमें हमने सीरीज देखा। अब अपन लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन को देखने जा रहे हैं जो पार्ट बी में देखेंगे। मगर पैरेलल कॉम्बिनेशन बोर्ड में 3 मार्क्स में आ सके ऐसी थियरी मोस्ट टाइम भी, और उसके न्यूमेरिकल्स एप्लीकेशन देखेंगे, कुछ एम्स नीट और जेडब्ल्यू के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सो पार्ट बी वेरी एमपी फॉर वी कैन से दैट पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स एंड मिक्स्ड, so be alert about it.